Good morning, students. Yesterday we have done the definition of probability. I told you about how can we find the probability of anything. Anything means coins, dice, etc. And today we are starting your exercise 25.1. Under this chapter, only one exercise, that is a 5.1. And now here we have only 4 questions. Look at here on your book also. Listen, beta, today I am not writing down the question statements here. Okay, I'm just giving the answer, and you also have no need to write down the statements on your fair notebook. Just write down the answers. But statement you can see from your book. Understand the statement from the book. First statement is here. A coin is tossed 1000 times with the following frequencies: head frequency 445 and tail frequency 555. When a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head and tail? It means we have to find the probability of head or tail firstly. What value of head is there? How many times head is occurring? It's a frequency. Head given is this. It is a frequency of head. Frequency means number of times head is occurring. How many times? 445 times. And tail 555 times occurring. And total number of trails. How many total numbers of trails? 1000. Now how can we find the probability of head? We will write down like is this. Probability in bracket head. जिसकी निकालनी है उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे. अब यहाँ पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी लिखते हो, जहाँ लिखते हो नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टाइम्स हेड इज अकरिंग. ओवर में क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स. कैसे लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. लिसन बेटा, first sum, so that's why I am explaining completely. In the next, no need to write a full things. Got it? जहाँ तो आप लिख सकते हो frequency of head. Okay, frequency का मतलब number of times head is occurring. Frequency of head over total number of outcomes. Total number of outcomes. Now we have to fill the values. You can write this one, then this one step you can write this one also. ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिखा है कि आप नंबर ऑफ हेड्स भी लिख सकते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ हेड भी लिख सकते हो, कुछ भी दोनों में से जो मर्जी लिख लो. That is for you, for your understanding. Now number of heads, it means frequency of head. How many time head is occurring? 445. And total numbers of trails 1000. Now convert in decimal form. We can convert it. What will answer come? 0.445. Similarly, I will find the probability of tail. Now, what will come? I am not now repeating all these steps. Directly, here will come. Probability जिस चीज़ की निकालते हैं उस क्या होता है? probability का फार्मूला इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में वो चीज जिसकी निकाल रहे हैं वो कितनी बार अक्कर कर रहा है न्यूमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी आउटकम्स हैं. ठीक है, कितनी टाइम उसको टॉस कर रहे हो या कुछ भी मीन्स अगर तो 1 टाइम करते हो तो उसकी टोटल आउटकम्स 2 होती हैं. अगर हमने 100 टाइम उसको टॉस किया है, इट मीन्स 100 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. गॉट इट? हियर विल कम नाउ 555 over 1000, 0.555. It's your answer. Now I have write down in numerator number of times frequency of tail. How many times is tail is occurring? 555 times. And the total number of outcomes, total number of trails. How many times total number coin has tossed? 1000 times. Okay, got it? Now first is done. Now we are starting your second sum. Okay, again I am not writing down the statement. Okay, just directly solution I am going to solve.
Look at here. A die is thrown 100 times. Outcomes are noted as given below. एक डाई को उन्होंने 100 टाइम टॉस किया. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स उसमें क्या होगी 100 टाइम अगर टॉस किया होगा तो कितनी बार 1 आया होगा 21 टाइम्स 1 इज अकरिंग. फ्रिक्वेंसी ऑफ 1, नंबर ऑफ टाइम्स 1 इज अकरिंग 21. 2 कितनी बार अकर किया 9 टाइम. 3 14 टाइम. 4 23 टाइम्स. 5 18 टाइम. 6 15 टाइम. ठीक है. देन दे आर सेइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड probability of 3 means they are saying now find out the probability of 3. किसकी probability? फर्स्ट में क्या है, हमने probability निकालनी है 3 की. ठीक है, 3 की probability निकालनी है. नाउ न्यूमिनेटर में क्या क्या आता है, जितने टाइम 3 अक्कर किया होगा. ठीक है, अगर आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितनी है 14. 14 ओवर क्या आ जाएगा 100. तो आंसर क्या है 0. वी कैन सी वी कैन कट डाउन ऑल्सो कन्वर्ट इन लोएस्ट टर्म. हाउ 14 और 100 बोथ आर डिविजिबल ऑफ 2. 2 7 और 14 2 5 और 10 50 पे जाता है. तो क्या आंसर बन गया हमारे पास 7/50 इसका आंसर आ गया. ठीक है, अब नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड में कह रहे हैं 5 की प्रोबेबिलिटी निकालो. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स. 5 how many time has occurred 18 over 100. अगेन हम कट कर सकते हैं. 2 के 2 9 और 18 2 5 और 10. आंसर क्या बन गया 9/50. थर्ड सम सिमिलरली थर्ड होमवर्क. ठीक है, सिमिलरली होना है तो डेट इज योर होमवर्क. नाउ सम नंबर फोर्थ में दे आर सेइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर की निकालनी है. अब नाउ लुक एट हियर हाउ मेनी इवन नंबर 2 4 6. मतलब सेपरेट नहीं निकालनी, इवन कितने हैं तीनों के साथ में निकालनी. इट मीन्स क्या आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर आएगी. इवन नंबर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर्स में क्या क्या आएगा, कौन कौन से हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 6. 2 की कितनी है 9. 4 की कितनी है 23. 6 की कितनी है 15. तो ये किसके इक्वल हो. नाउ वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 47 की. और हमने निकालनी किसकी है प्रोबेबिलिटी इवन नंबर्स की. इवन नंबर्स की निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर. फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर कितनी आ गई हमारे पास 47 और ओवर में क्या आ गया 100. ये हमारा आंसर्स बन गया. ठीक है, सिमिलरली जो ऑड है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर है वो आप खुद करोगे. गॉट इट, वो आप खुद करोगे. इट मीन्स सम नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है. सेकेंड का 5 इट्स होमवर्क. नाउ आई एम सॉल्विंग दिस वन. इसमें क्या है नंबर लेस देन 3. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी लेस देन 3. अब लेस देन 3 कौन कौन से हैं 1 and 2. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 + 2. हमें किसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 3. ठीक है, लेस देन 3 जो छोटे उनकी फ्रीक्वेंसी. और लेस देन 3 क्या क्या है 1 और 2. इट मीन्स वी हैव टू नीड ऐड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2. 1 की कितनी है 21 और 2 की कितनी है 9. कितनी हो गई 30. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 3 कितनी आ गई हमारे पास 30. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3. नंबर मीन्स फ्रीक्वेंसी. प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 3 क्या आएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 3 कितनी है 30. ओवर में क्या आ जाएगा 100. 0 0 आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा 3/10.
Got it? Is it clear? Fine. Now third क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. ओके बेटा, आई थिंक बाय सेकेंड सम everything you have cleared very well, so you can do the fourth one very easiest. That is very easy. Frequency of one head and no tail, two heads. Here is given two heads frequency 105. No head means tail frequency. हेड नहीं आ रहा तो टेल फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंसी कौन सी नहीं है, टेल की. वन हेड हो, वन हेड की फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, 275 में. ये आप कर लोगे. दैट इज़ योर होमवर्क. अब नाउ वी आर सॉल्विंग योर सम नंबर 3 में क्या कहा है उन्होंने, अ बॉक्स कंटेन 2 पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स. एक बॉक्स में 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स पड़ी हैं 2 कलर्स की. आई हैव पिक्ड आउट अ वाइट सॉक. एक सॉक उसमें निकाल ली, कौन सी, वाइट वाली. आई पिक्ड आउट वन मोर विद माई आइज क्लोज्ड. आइज को बंद किया और एक और निकाल ली. देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट आई विल मेक अ पेयर. तो क्या प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने जो निकाली है, वाइट ऑलरेडी निकाल रही है और एक आँख बंद करके निकाली है, उसका पेयर उस निकाली हुई के साथ बनाना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, वो हमने निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल socks, 2 pair of socks. It means in one pair how many socks, 2. तो 2 pairs हैं तो 2 और 2 क्या होगी, टोटल सॉक्स कितनी होगी, 4. ठीक है. आफ्टर पिकिंग वन, लेफ्ट सॉक्स 3 और प्रोबेबिलिटी मेक अ पेयर, make a pair after picking white one, left socks 3. So probability make a pair with white one. What will come? 1/3. It's your answer. Okay. Now I will clear to you how it has came. Total उसमें कितनी है, 4. Okay. 4 में से कहते हैं उन्होंने क्या किया, एक वाइट कलर की सॉक्स निकाल ली, तो कितनी रहेगी वहाँ पे, 3. ठीक है. अब 3 है, इसमें से उन्होंने क्या किया, आंखें बंद की और एक और निकाल ली. ठीक है. निकाल ली तो वो कह रहे हैं कि वो जो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, जो मैंने उसने पहले वाइट सॉक्स निकाली है उसके साथ अगर पेयर बनाना है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी. इट मीन्स एक तो वाइट निकाल ली हुई है, अब जो 3 बचे उनमें से एक वाइट है अभी भी, तो जो एक और आंखें बंद करके वन मोर जो उसने आंखें बंद करके निकाली है, वो हो सकता है कि वो वाइट वाली निकाली हो और नहीं भी हो सकता. इट मीन्स टू मेकिंग अ पेयर विद वाइट सॉक्स हैव अ चांसेस इज 1. मेकिंग अ पेयर विद वाइट सॉक्स हैव अ चांसेस इज 1. एक चांस तो है ना, हो सकता है ना, जो वो निकाले आंखें बंद करके दोबारा से, वो एक वाइट वाली भी तो निकाल सकता है. इट मीन्स वहाँ पे एक चांसेस बन रहे हैं, 1 और 3 टोटल रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ना पहले ही कि आई हैव पिक्ड आउट 1, उसमें से निकाल लिए और एक और निकालते हैं आंखें बंद करके. इट मीन्स जब वो निकाल चुके हैं तो टोटल कितनी रह गई हैं अब वहाँ पे, 3. तो उसमें से 3 में से एक और आंखें बंद करके निकालेंगे तो वो क्या, वो जो निकाली हुई है उसके साथ पेयर बनाएंगी. येस, इट्स पॉसिबल because there are still one is left white one, and if he will pick, that can be white socks is there. So that's why probability to make a pair 1/3 will come. Got it beta? So third is also done and fourth year homework. Thanks and have a nice day.